good evening everyone. Yesterday we have studied about this submodule 2 of aircraft structures, general concepts. Okay, so just let us quickly revise the points that we have gone across. That the first one was airworthiness requirements for the structural strength. Okay, what are the certification standards and all we have talked about. And then we have talked about what is primary structure and what is secondary structure, what was tertiary structure. Then we have studied about damage tolerance concepts like fail-safe concept. Then we have got safe life concept and damage tolerance. What is damage tolerance basically? That also we talked about. Then we discussed about aircraft's various stations and its numberings, right? What was datum in this and how these lines are actually marked and in what units and everything. What are the different lines we have? Okay, what are the different sections we have, and also what are the different zones and their each individual numbers that we have read yesterday. Along with that, we have also studied about the stresses, the 5 main stresses, that is tension, compression, bending, twisting and shear, which works on an aircraft whenever the aircraft is under some sort of stress, whether it is standing or maybe it's flying. And then we have also studied about a very special type of stress that is developing on the aircraft circumferentially on the aircraft fuselage whenever the fuselage is under pressure from inside. Okay, due to the pressurization of the due to the cabin pressurization system, the hoop stress is actually generated on the aircraft circumferentially over its circumference. Okay, on the fuselage. So now let us study a new topic today in this particular thing. Over here we can see there is a topic which is called drainage. Now why this is so important? We all know drainage is very simple. Like we all have got drains in our house also. Like we just allow the waste things to pass out from our houses and household kitchen issues, whatever we have, all those things also pass out from the same drain. So in the same way we have got drains in the aircraft also. We do require a drain in the aircraft system. In each and every system there should be separate drains, which is basically called as drainage. And the drainage system is required because if anything gets collected, okay, if any type of a chemical, if any type of fluid gets collected in the aircraft, inside the aircraft in any system at the bottom surface, that may either corrode the material, okay, if it's a metal, mainly there are metal only, or what will happen, there may be electrical fire, electrical hazards due to that particular fluid. The fluid will be conducting electricity through which there may be fire. So in order to prevent that, what we do is we actually allow a proper drainage system. So that drainage is a way in which the waste materials may be removed from the aircraft overboard during the overboard means outside the aircraft during the flight, or maybe on ground. Either on ground we can release all the waste materials, all the extra water that we take inside the aircraft, or maybe any other thing. Okay, there may be oils, extra oils in the systems, or maybe anything. So all these things may be either made out from the aircraft or thrown out from the aircraft through those drainage points, either during the flight or maybe on the ground. So they may be a internal or external type. There may be two types of drainage, either internal drainage or external drainage. What is internal drainage? It is basically a type of drainage in which all the systems are internally connected to each other, and from all those internal systems, whatever the fluids, be it any residual fuel or maybe oil or maybe water or any other substance, I mean it may be waste substances also like urines, and you've got feces and all these things, okay, the solid or maybe the liquid, whatever the waste material it is, so those are actually collected in the internal systems. Okay, and then when all those things will be collected together, it has to go out through some external device, okay, through some external drainage. So that comes under the external type drainage. Okay, when through which the finally it comes out from the aircraft. So they are basically long tubes or pipes or channels which run across from one point to the other point, कि कहाँ से हम लोग को basically वो waste product निकालना है और कहाँ से ले जाना है. And the drain mast is a very important thing. Now why this is so important? Drain mast कुछ भी नहीं है, basically नीचे एक फोटो दिया हुआ है, वहाँ पे hot लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, and it looks like an antenna. Okay, but it's not an antenna. Okay, this is just a simple structure which is aerofoil in shape ताकि drag ना produce हो और वो जहाज के बाहर लगा रहता है, and it is basically a sort of a hollow section जिसके अंदर से ये फ्लूइड जो है ये बाहर चला जाता है. ठीक है,
ये बाहर चला जाता है एयरक्राफ्ट से। और ये क्यों हॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज जब कोई भी फ्लूड एट हायर ऑल्टीट्यूड, जब वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जब कोई भी फ्लूड, वेन एवर सम फ्लूड विल बी पासिंग थ्रू दैट वेरी लो टेम्परेचर आउटसाइड, तो ये जो मास्ट है, ड्रेन मास्ट, और ये जिसको हम लोग ड्रेन मास्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो आउटवर्ड सेक्शन जो है जहाँ से ये निकल रहा है बेसिकली द आउटलेट, तो ये आउटलेट वहाँ पे फ्रीज हो सकता है, फ्रीजिंग हो सकता है, वहाँ आइस जम सकता है, ठीक है। तो आइस ताकि ना बने वहाँ पे, दैट्स द रीज़न इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिकली हीटेड थ्रू सम रेजिस्टेंस वायर्स, ओके, थ्रू सम रेजिस्टेंस वायर्स जो इसके चारों साइड पे लगा रहता है, एंड दैट ओनली हीट्स अप दिस मटेरियल, ये मेटल का होता है, तो वो बाहर से उसको टोटली हीटअप किया जाता है, उसका अंदर से वायरिंग रहता है वो रेजिस्टेंस कॉइल्स, फिर उसको हीटेड किया जाता है ताकि आइसिंग ना हो वहाँ पे, ओके। एंड देन वी हैव गॉट डिफरेंट वाल्व्स which are fitted with some seals to close the drainage lines whenever the aircraft is pressurized। तो ये ड्रेनेज अगर हमेशा खुला रहेगा तो एक दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है कि अगर जहाज़ प्रेशराइज किया जाएगा अंदर से, सो केबिन प्रेशर विल बी लूजिंग, वी विल बी लूजिंग द इफेक्टिव केबिन प्रेशराइजेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जहाज़ अंदर से अगर बहुत सारा ड्रेन हो सकता है, अब इतना सारा होल अगर जहाज़ में रहेगा जब जहाज़ काम कर रहा है, सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, the pressure will be leaking out, right? So to stop that we need to apply some sort of a valve mechanism। तो वो जब जहाज एक्चुअली पावर्ड अप रहता है whenever it is flying, so with some pneumatic power, means with some air charge and air pressure, those valves are actually closed, those valves actually close the drainage system and there is no passage of anything during the flight, okay। whenever the aircraft comes on ground, तो वो फिर वो जो एयर चार्ज था, एयर प्रेशर जो था, न्यूमेटिक जब पावर, वो भी ख़त्म हो जाता है, उसको भी बंद हो जाता है वो, क्योंकि अभी ग्राउंड पे आ गया, सो देर इज़ नो पावर नाउ, सो दैट वंस दैट शट्स ऑफ, फिर उसके बाद ये वाल्व जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। ये ऑटो ऑन कंडीशन में रहता है, इट इज़ ऑलवेज इन ऑन कंडीशन, ओपन कंडीशन, और इसको प्रेशर देके बंद किया जाता है ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये जैसे ऑन हो जाता है, फिर एक के बाद एक अपने आप ये जो भी है रेसिडुअल फ्यूल, ऑयल एंड वट एवर द वेस्ट मटेरियल्स इट हैज़, वाटर, ये सारा निकल जाएगा, ठीक है। So that is all about the drainage system। So that was very important that you supposed to know, because these are something that any aircraft technician and engineer they should look after, that it should always be open and on। फिर सेम टाइप ऑफ कुछ सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन सिस्टम। एंड व्हाट इज़ वेंटिलेशन सिस्टम, इसको वेंट सिस्टम भी बोला जाता है। एंड वेंटिलेशन इज़ अ वे ऑफ रिमूविंग अनवांटेड वेपर, ओके। वहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, ड्रेनेज से हम लोग लिक्विड को रिमूव कर रहे थे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, वेंटिलेशन से हम लोग वेपर को रिमूव करेंगे, ऑयल का, फ्यूल का, वाटर का, जो भी वेपर है कोई भी सिस्टम के अंदर जो बन रहा है। विंग टैंक में क्या हो रहा है, विंग टैंक में बेसिकली हम लोग का विंग टैंक में क्या हो रहा है, विंग टैंक में बेसिकली हम लोग का जो एक्चुअली ये आपका जब भी वाइब्रेशन होता है, जब भी जहाज फ्लाई कर रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो विंग टैंक में क्या हो रहा है कि फ्यूल का वेपर बन रहा है, राइट। तो फ्यूल का वेपर ताकि उसके अंदर ना बने, ओके, तो ताकि वो फ्यूल वेपर अगर लाइन में आ जाएगा तो लाइन को वो ब्लॉक कर सकता है ना, वो इफेक्टिव फ्यूल वो वहाँ से पास नहीं करेगा, इट विल ब्लॉक द लाइन। सो वो फ्यूल का वेपर ताकि फ्यूल के आगे ना आ जाए, वो बीच में ताकि वो एयर बबल जैसा बन के वो उस सिस्टम को ख़राब ना कर दे, फंक्शनिंग को बेकार ना कर दे, उसके लिए क्या किया जाता है कि फ्यूल वेपर्स को ऑन ओवरबोर्ड, मतलब विंग के ऊपर एक वेंट लाइन रहेगा, नीचे भी वेंट लाइन रहेगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो वेपर से वो सारा उड़ के बाहर चला जाता है। तो दोज आर कॉल्ड वेंट लाइन। सो यहाँ पे एक पिक्चर है जो आप देख सकते हो, एरो से मार्क किया गया है। सो दीज आर लाइक सम पाइप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स और एनीथिंग विच आर केप्ट ऑल ओवर द एयरक्राफ्ट, जहाँ से कोई भी ऑयल सिस्टम हो, वेंट सिस्टम हो, इंजन का, जैसे इंजन में भी एक वेंट सिस्टम रहता है कि इंजन का जो ऑयल बर्न हो रहा है दैट हैज़ टू गो आउट समवेयर, राइट। सो जस्ट इन द सेम वे any type of vapor removing system, you can call that as a sort of a ventilation system, okay। and कभी कभी क्या होता है, you can see it's written that sometimes even ram air inlet is kept from the opposite side of the wash to wash away the vapors। कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि वेपर एक बॉक्स से या कोई भी एक टैंक से वो उठ गया, फिर उसके बाद वो बाहर जा नहीं रहा है, वहीं पे वो फ्लोट कर रहा है, बिकॉज इट्स वेरी लाइट इन एयर, तो वो और भी वहाँ पे घूम रहा है, वो वेपर बाहर जो जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, कोई भी उल्टे साइड से और दूसरा एक आउटलेट बना देते हैं, सॉरी इनलेट बना देते हैं। वहाँ से क्या होता है कि रैम एयर आता है,
जब एयरक्राफ्ट सामने जाएगा ना, सो रैम एयर विल बी कमिंग इन थ्रू दैट। रैम एयर मतलब जो बाहर से हवा जो अंदर की तरफ आएगा, जैसे वो उसको वो छेद मिलेगा, होल मिलेगा, वहाँ से वो इनलेट से वो हवा बहुत स्पीड से घुसेगा और वो क्या करेगा, वो वेपर जो है उसको पुश करके लेके आउटलेट से निकाल देगा, ठीक है। सो दोस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर ऑल्सो समटाइम्स केप्ट। देन वी हैव गॉट एक्सेसिबिलिटी एंड सेपरेट बेस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Why? Because any aircraft in today's modern aircraft, if you have studied module 5, you will come to know that all the aircrafts are now based on the purpose of IMA. Okay, what is IMA? It is integrated modular avionics. Means कोई भी एक particular system जो है वो एक separate modular module system में, जैसे हम लोग का modules होते हैं, DGCA modules है, separate separate subjects है, वैसे ही avionics system भी separate separate particular chapters अलग अलग करके, अलग अलग जो भी इसका फंक्शंस है, काम है, अलग अलग सिस्टम का सब अलग अलग हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि ऑल ये जो काला काला बॉक्सेस है ना सारा, दिस आर ऑल कंप्यूटर्स, ओके। इसको CCM बोला जाता है नॉर्मली। एंड दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर बेसिकली occupied with many memory cards and many chips, integrated circuits, जो बेसिकली एक टोटली इंडिविजुअल सर्किट को या टोटली इंडिविजुअल सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे लैंडिंग गियर को मूव करवाने के लिए यू नीड अ टोटल लैंडिंग गियर सिस्टम, ओके। जस्ट इन द सेम वे कुछ और सिस्टम होगा तो उसको मूव कराने के लिए एक अलग कंप्यूटर है, फ्लैप को मूव कराने के लिए अलग कंप्यूटर है, देयर फॉर द स्पॉयलर्स यू हैव गॉट अनदर कंप्यूटर। सो देयर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम। तो ये सब चीज़ को एक जगह रखने के लिए एक बे बनाया जाता है, जिस बे को बोला जाता है कि एवियोनिक्स बे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एवियोनिक्स कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स, ओके। ऐसे अगर कोई हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो भी है वो सारा आ जाएगा हाइड्रोलिक बे के अंडर में। दूसरा कुछ हुआ तो दूसरा कोई सिस्टम हुआ तो वो आ जाएगा उस बे के अंडर में। तो ऐसे अलग अलग बे किया गया है जहाज़ में, और इस बे में ना कोई भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी इसके अंदर जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हम लोग का एक्सेस है, वी कैन गेट इनसाइड दोज बेज, ताकि कोई भी टेक्नीशियन को इजीली वहाँ पे जाके कोई भी एक सिस्टम को अगर रिमूव करना है, लगाना है, सो दैट इज़ प्रिटी ईजी। बिकॉज नाउ you all know there is a LRU concept. What is a LRU concept? It is line replaceable unit. वो यहाँ पे लिखा नहीं है, but I am telling you कि line replaceable unit is a type of any type of a component or anything is which is very easily which you can replace in the line. लाइन मतलब लाइन मेंटेनेंस पे, लाइन मेंटेनेंस पे आप बिना उसको इधर उधर ले जाए जहाज को मेजर मेंटेनेंस के लिए, आप बस उस यूनिट को रिप्लेस कर सकते हो। सो ऑल दोस टाइप ऑफ यूनिट्स, और मैक्सिमम यूनिटी अभी ऐसा ही हो गया है, ओके। ऑल आर लाइक LRU कंसेप्ट बेस्ड यूनिट्स। तो कोई भी एक कंपोनेंट उसको हम LRU तब भी बोलेंगे जब उसको हम लोग लाइन पे ही रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स लाइक अ लाइन रिप्लेसेबल यूनिट, कि आप उसको खोलोगे और दूसरा वाला आप लगा दोगे जो सर्विसेबल आइटम है, और जो खराब है उसको निकाल के ले जाओगे फॉर ओवरऑलिंग, ओके। सो दिस लाइन रिप्लेसेबल यूनिट और LRU कंसेप्ट, इसके लिए क्या हुआ है कि हमें एक्सेस जो चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड वी नीड प्रॉपर एक्सेस। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, it will be very difficult for any technician to get inside into so many systems and then actually वो उसको वहाँ से उठा के ले आना, फिर जो भी सिस्टम में वो जो खराबी है उसको फाइंड आउट करना, फिर उसके बाद उसको निकाल के दूसरा वाला लगाना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर एक्सेस नहीं है प्रॉपर तो इतना सारा सिस्टम है, एंड देन दैट विल बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग बे बनाया गया जहाज में, ओके। होप दैट्स क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, okay। And the last one is lightning strikes for today, and also bonding. So what is lightning strikes? Let me first explain this. Whenever the aircraft faces some lightning strike, तो lightning strike तो सबको पता है कि जब बिजली चमकता है ना तो क्या होता है कि उसमें ना कम से कम मिनिमम देयर इज़ 1 लाख एम्पियर। 1 lakh ampere is a huge charge, huge electrical charge. So that huge electrical charge basically strikes the aircraft surface. So we all know that aircraft is made with metal. I mean, even today's aircraft it has composite, but still there are certain parts in the aircraft, like a major part in the aircraft, which is still you can say it's containing metals. तो वो एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, आयरन का अलॉय हो, स्टील हो, स्टील का अलॉय हो, डजेंट मैटर, बट दे आर मेटल्स। तो इट विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो अगर कहीं पे ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए, तो क्या करेगा, चार्जेस में क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी रहता है। सो दैट विल बेसिकली हीट अप द एरिया। सो इफ दैट हीट्स अप द एरिया टू मच, so there will be a chances of burning, right? Or also what will happen, the charges may jump from one point to another point causing electrical shocks. तो electrical shocks और ये burning को avoid करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल शॉक्स और ये बर्निंग को हम लोग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग बेसिकली
दो काम कर रहे हैं। एक है कि डिस्चार्जर लगा रहे हैं, देर आर स्टैटिक डिस्चार्जर्स जो चार्ज को डिस्चार्ज कर देते हैं एयरक्राफ्ट के बॉडी में। जब जैसे ही एयरक्राफ्ट सामने जा रहा है क्या हो रहा है कि जैसे इट इज़ मूविंग इनसाइड द एयरक्राफ्ट, इनसाइड द एयर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग इट सर्फेसेस, ओके, और फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। फ्रिक्शन पैदा होने के कारण क्या हो रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टैटिक चार्जेस विच आर डेवलप्ड। हम लोग को पता है ना कि दो चीज़ें आपस में घिसा जाता है तो उसके अंदर दोनों में ही एक अलग अलग दो स्टैटिक चार्जेस बन जाते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है, बॉडी है, उसमें बहुत सारा चार्जेस आ जाता है बिकॉज इट्स अ बिग एयरक्राफ्ट लेट्स से। तो उतना सारा चार्जेस को हम लोग को इमीडिएटली अगर हम लोग उसको हवा में ही ना रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और जहाज़ का जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस से भर जाएगा, ठीक है। एंड इट में इवन समटाइम्स कॉज फायर हैजर्ड, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसको हम लोग को अगर जहाज़ से इमीडिएटली हम लोग को एयरक्राफ्ट से अगर उसको रिलीज़ करना है तो देयर आर स्टैटिक डिस्चार्जर्स। ये कुछ नहीं होता है, पेंसिल या पेन जैसा होता है, बहुत थिन ऐसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा रहता है। और वो कहाँ कहाँ लगा रहता है, नॉर्मली इन द ट्रेलिंग एजेस, कहाँ कहाँ, जैसे कि एलेरॉन का जो जगह है, विंगलेट जो है, फिर आपका कोई भी ट्रेलिंग एज ऑफ द विंग है, ट्रेलिंग एज ऑफ द हॉराइजॉन्टल स्टेबिलाइजर है, जैसे आपके एलिवेटर के पीछे हो गया, रडर के पीछे हो गया, ऑल दीज एरियाज जहाँ से वो एक्चुअली बेसिकली हवा जो छोड़ के जा रहा है उसके साथ वो चार्जेस भी चला जाता है, ठीक है। इट रिलीजेज द ऑल द चार्जेस थ्रू दोज स्टैटिक पॉइंट्स। और वो कैसे फिक्स रहता है, वो इधर बोल्ट से, कोई फास्टनर से या फिर इपॉक्सी गम से उसको उसमें फिट किया जाता है। तो अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनने के कारण क्या हो गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनने के कारण बॉडी में बहुत सारा चार्जेस आ गया। और दूसरा क्या कारण है चार्जेस आने का, कि अगर आउटसाइड से एक्सटर्नली अगर कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया जहाज पे तो उसके कारण भी हो सकता है स्टैटिक चार्जेस, लॉट ऑफ करंट विल बी फॉर्मिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। तो ये दो कारण मेन कारण है। एक तो है कि स्टैटिक वाला जो हमेशा हो रहा है, वेन एवर द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इट इज हैपनिंग, एंड द सेकंड पॉइंट इज द लाइटनिंग। व्हेन सो लाइटनिंग इज नॉट अ एवरीडे थिंग, अगर लाइटनिंग हुआ तो होगा वरना नहीं होगा, लेकिन लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा होता है चार्जेस। तो इमीडिएटली रिलीज़ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि वी हैव टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल ऑल थ्रू आउट द एयरक्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी दो पार्ट है ना, उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज सम डिफरेंस देन द प्रॉब्लम विल बी व्हाट, that the electrical charges will be imbalanced between the 2 points, so there will be a chances of the charges flowing from one point to other point। उसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक्स बने, ओके, उसमें हो सकता है कि हीट जनरेट हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हर एक पॉइंट को वी हैव टू मेक ऑफ द सेम लेवल ऑफ चार्जेस होना चाहिए, ताकि चार्जेस पूरा बैलेंस हो जाए ऑल ओवर द बॉडी। उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। तो बॉन्डिंग यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव सीन ऑल द स्टैटिक विक्स, स्टैटिक डिस्चार्जेस, जो मैंने अभी बोला कि ट्रेलिंग एज पे फिक्स रहता है, ये वाले सारे, ओके। एंड ऑन द राइट साइड यू हैव गॉट, you can see there is a yellow wire which is called as a bonding jumper, and that bonding jumper, what it is doing, it is basically bonding 2 points. You can see with two screw, you can see they have actually on the one side there is a nut which is tightened, and on the other side there is the plate। तो ये दो पार्ट के बीच में एक वायर से हम लोग बॉन्डिंग कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्ट को हम लोग, दोनों पार्ट का पोटेंशियल को सेम कर दे रहे हैं, कि कहीं पे भी अगर एक चार्ज डेवलप हुआ तो वो चार्ज दोनों में सेपरेटली नहीं रहेगा, दोनों में बैलेंस हो जाएगा। ये पूरे जहाज़ में होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट यू विल फाइंड दिस विल बी देयर, ओके। और इसका एक पीरियोडिकली टेस्ट भी किया जाता है, इट इज़ बीइंग टेस्टेड। और किसके लिए टेस्ट किया जाता है कि उस वायर जो है वो, पहला तो है कि उसका जो कंटिन्यूटी है वो चेक किया जाता है कि वो ब्रेक नहीं हो गया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा होता है कि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ मेटल वेयर। सो विथ टाइम व्हाट विल हैपन, देयर मे बी कोरोशन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स टेकिंग प्लेस, एनवायरमेंटल रीजंस के कारण उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जा सकता है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया वेयर में तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको रखने का, इट विल नॉट एक्ट एज अ बॉन्डिंग मटेरियल। क्योंकि बॉन्डिंग का पर्पस क्या है कि बिना रेजिस्टेंस के उसके अंदर से मैक्सिमम करंट पास हो जाए ताकि पूरा बैलेंस रहे, है ना। सो इफ़ अगर कोई भी वायर जो बॉन्डिंग के काम आ रहा है, अगर उसमें ब्रेकेज है या फिर उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि वो कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो उसको रहना ना रहना का कोई मतलब ही नहीं है बेसिकली, है ना। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 0.1 ओहम। Ohm is a unit of resistance, we all know, so it should not increase more than 0.1 ohm,
Okay, so that's all about these 4 things. Probably it's a shorter video. I guess it will be easier for you to go through these things. I'll come up with other things from this general concept sub module more one by one. So for now, just keep revising and let me know if you have any doubt, as I always say. And I am following Yaza module 11A book. You can also follow other books. If you need help from me regarding books and anything, you can definitely have a talk about this. And I do have a group right now, it's a WhatsApp group. You can even share anything if you want to share over there. If you can even share question papers if you want to. You have any doubt, any concept related issues, you can come up definitely. Okay, so thanks for now, and uh, just keep revising and do let me know if you have any problem. Thank you.